Hello students, this is Expressive Learners here, me Vishali, and today we are going to start ahead with a new chapter of your IT information technology, that is entrepreneurship. We know that we are coming back after a long time, so sorry for the delays. Now let's get ahead without wasting any moment. On this channel now you'll get back-to-back revision batches, so do subscribe the channel and hit the bell icon for the latest video updates. So today we will be starting with the entrepreneur skills chapter. Let's get ahead. Yes, this is our chapter 1, entrepreneur skills. So what is exactly entrepreneur? The term entrepreneur derived from entrepreneurial skills. The whole term is entrepreneurial. And the entrepreneur word, what does it means? If I say the entrepreneur is an individual who establishes a business for making profit, is it right or not? Of course it is right. It is only that individual only that establishes a business for making the profits. Okay. सो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि एक बिज़नेस खड़ा करता है, इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है अपने प्रॉफिट के लिए. ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन भी मिल जाएगी. Entrepreneur, the word entrepreneur is derived from the French word entrepreneur, which means to undertake. To what undertake? To undertake a new business, to bearing most of the risks, enjoying most of the rewards. And there is example of Howard W. Johnson, who was an American educator. He says that entrepreneur is composite of three basic elements: invention, innovation, and adaptations. According to Joseph Schumpeter, entrepreneurs as innovators who use the process of entrepreneurship to shatter the status quo of existing products and services to set new products, new services. Again, the whole definition is based upon that entrepreneur is an individual basically who establishes a growing business. फर्स्टली तो उसको नहीं पता होता ना कि उसका बिजनेस ग्रो करने वाला है या नहीं करने वाला है, बस वो एक बिज़नेस को एस्टैब्लिश करता है विद अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट. ओके, अब हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो भी है. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जैसे कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो एक इंडिविजुअल है जो जिसके पास कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं. ठीक है, नो डाउट वो एक सोसाइटी में रहता है, उसके पास भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, जो कि उसकी इकोनॉमिक लाइफ को बहुत अफेक्ट करती हैं. अब ये बात है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, फॉर एग्जांपल आई विल से यू विद द एग्जांपल. एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं. एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट प्रमोट करता है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटिवनेस इन बिजनेस, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ हैं एंटरप्रेन्योर की, अच्छे एंटरप्रेन्योर की. एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर पूछा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप how will I explain that entrepreneurship is somewhat that entrepreneurs build upon in themselves, like a quality, है ना. तो अब हम एंटरप्रेन्योर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि होनी उसमें बहुत ज़रूरी है. द मेजर क्वालिटीज़ एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लीडरशिप है. ओके, leadership, that is entrepreneur must possess the characteristics of a leadership, must lead a team and for the achievement of the goals. Yeah, it's really right that leadership is very necessary for the qualities. In the qualities it is noted down कि उसमें leadership qualities होनी चाहिए कि उसको पता हो कि कैसे उसने अपनी टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, एंड करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसमें कि वो एक टीम लेड कर सके, अपनी पूरी टीम के साथ काम करे, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट गेन कर सकता है. ठीक है, रिस्क टेकिंग, ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस यू डोंट नो ना वेदर इट विल एस्टैब्लिश और नॉट, whether it will become more healthy and not. So आपको तो रिस्क एक बार लेना पड़ता है ना, तो रैशनल प्लानिंग और काफ़ी सारे डिसीजंस को लेते हुए यू बियर द रिस्क. तो रिस्क टेकिंग इज़ ऑल्सो इन मेजर क्वालिटी इन द सीन इन द गुड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, गुड एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज रेडी टू इन्वेस्ट टाइम एंड देयर मनी, बट ऑलवेज दे हैव द बैकअप फॉर एवरी रिस्क दे टेक. ठीक है, बट हाँ, ये उस रिस्क को ले तो रहे हो तुम, लेकिन उसकी गारंटी भी लेनी पड़ेगी कि हाँ हम इस रिस्क को बियर करने के लिए काफ़ी मेहनत करने वाले हैं. द रिस्क टेकिंग द रिस्क टेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफन सीन इन एंटरप्रेन्योर्स, बट ऑल्सो व्हेन दे आर बिगिनिंग विद अ न्यू वर्क, ऑब्वियसली द रिस्क देयर, यू हैव टू बियर दैट रिस्क बाय वर्किंग हार्ड. ओके,
दे आर ऑलवेज करेजियस. यहाँ से हम एक और लिख सकते हैं कि दे आर करेजियस, दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क फॉर देयर बिजनेस. नेक्स्ट द इनोवेटिवनेस. यस, तो इनोवेटिवनेस बहुत ज़रूरी है. वॉट इज़ एग्जैक्टली द इनोवेटिवनेस? मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको. तो innovators with the changing needs and the requirements of the customer's production should meet the requirements with the help of innovative ideas. The entrepreneur venture does not have to restrict itself to one innovation or even types of innovations. For example, a new product delivered in a new way with a new message. वेरी राइट. अगर हम आज के जो फ्यूचर मतलब कि जो भी हमारी टुडे चेंजिंग नीड्स हैं, जो भी हमारी चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग हम अगर प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे तो लोगों को वो पसंद भी आएंगे. फॉर एग्जांपल ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स जो भी हैं, XYZ प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो उसकी आपके पास एक आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, आपका माइंड बहुत इनोवेटिव होना चाहिए. दे ऑलवेज कम विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर न्यू टू द मार्केट. अगर आप नया नया प्रोडक्ट लेके आओगे, उसको अच्छे तरीके से लॉन्च करोगे, अच्छे मैसेज के साथ, लाइक वो जो हम हिंदी में विज्ञापन लिखते हैं, वैसे ही जब हम एक मैसेज के साथ उसको, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में हम मैसेजेस देते हैं ना कि आप ये खरीदिए, आपको ये हो, मतलब दीज बेनिफिट्स विल बी देयर, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला. सो दे ऑलवेज कम अप विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर न्यू टू द मार्केट. ओके, इनोवेटिवनेस भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है. विद द चेंजिंग नीड्स यू हैव टू बिकम इनोवेटिव. नेक्स्ट इज़ गोल ओरिएंटेड. Definitely goal oriented, that they have a clear vision of what will be the needed in future and they prepare the next move according to their vision. Good entrepreneurs achieve the maximum results from their efforts in the business due to the fact they work towards clear and measurable targets. You don't make the targets which will not be possible. ठीक है, गोल ओरिएंटेड, एक बिल्कुल एक क्लियर विजन होना कि आगे फ्यूचर में क्या नीडेड एक्सपेंसेस हैं और उसको मैंने कैसे प्रिपेयर करना, उसके लिए पहले ही तैयार रहना. डिसीजन मेकर. An entrepreneur has to take many decisions to put his business idea into reality. अच्छा, आपने सोच लिया आप XYZ प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हो, उसको रियलिटी में भी तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ब्ला 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 चीज़ें होती हैं जो कि आपको इन द शुरुआती ईयर्स आपको देखना पड़ता है. तो डिसीजन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ये नहीं कि प्रोडक्ट आपका 1000 रुपीज़ का है फॉर एग्जाम्पल और आप उसको 900 में बेच रहे हो, ऐसे तो आप लॉस बेयर करोगे ना. तो आपके पास डिसीजन मेकर भी, डिसीजंस बनाने की भी, एक अच्छे डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो और आपका वो जो डिसीजन जो आपने लिया वो फ्यूचर में जाके बेस्ट साबित हो. Next is highly optimistic. Highly optimistic is the successful entrepreneur is always optimistic and present problems does not matter to them. He is always hopeful that the situation will become favorable for the business in future. Yes, अब कभी भी आप जो कोई काम कर रहे हो, आपकी कंडीशंस आपके साथ फेवरेबल नहीं हो सकती हैं. एवरी टाइम यू नीड टू डू दैट. अगर आपकी विद द चेंजिंग नीड्स यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ. ये तो लाइफ है. अगर हमें हमेशा वो नहीं ना इन्वायरमेंट मिल सकता जो हम चाहते हैं, तो इसी तरीके से हाईली ऑप्टिमिस्टिक भी वही इसमें ये आएगा जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको मैटर नहीं करती हैं. वो लोग ये सोच के काम करते हैं कि हाँ फ्यूचर में जाके कंडीशंस मोर बेटर हो जाएंगी. सो दिस इज़ द highly optimistic characteristics of the entrepreneur. Motivator. Yes, अब ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इसमें से एक क्वेश्चन आया था पेपर में, आई हैव हर्ड इट. ठीक है, तो मैंने देखा था, उसमें क्वेश्चन था कि द एंटरप्रेन्योर इज़ मेकिंग कॉपरेशन विद द एम्प्लॉयज़, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर हिज करेक्टराइज्ड हियर. सो यहाँ पे मोटिवेटर की है, बहुत बच्चे गलत लिख कर आ गए थे, कुछ मैनेजेबल ऐसा कुछ था, तो वो ऑप्शंस में था तो उन्होंने लिख दिया था कुछ और, लेकिन इसका आंसर मोटिवेटर हैज़ टू क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क की स्पिरिट क्रिएट करना और उन्हें मोटिवेट करते रहना ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके. तभी तो एंटरप्रेन्योर का फ़ायदा होगा. अगर उसने लेबर रख लिए इन द क्वांटिटी बट दे आर नॉट डूइंग द वर्क, दे आर नॉट रेडी टू डू द वर्क, सो द एंटरप्रेन्योर ओनली हैज़ टू मोटिवेट देम. येस, यू हैव टू डू दिस अबाउट दिस मच सेल एंड ऑल ब्ला 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 थिंग्स. ओके, सो उसको उसमें मोटिवेटर की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंट. येस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी विच शुड बी देयर इन द एंटरप्रेन्योर. सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे भाई? सेल्फ कॉन्फिडेंट ऐसे कि वो उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आज अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो कल को जाके उसके जो डिसीजंस है उसको मिलेंगे, वो अचीव कर सकता है अपने गोल्स को. अदरवाइज ही वोंट बी एबल टू कन्विंस हिज टीम टू अचीव हिज गोल्स.
if he would not be self confidence, he or she would not be with the self confident manner, तो वो कैसे दूसरे को मोटिवेट कर सकता है? आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, तो आप किसी और के अंदर बिल्ड कैसे कर सकते हो? किसी और को मोटिवेट कैसे करोगे? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक सीन इन द एंटरप्रेन्योर्स. एक्शन ओरिएंटेड, should have the action oriented visually and visions and ideology to plan things well. एक्शन ओरिएंटेड मीन्स कि जो आपने अपनी आइडिया को रियलिटी में चेंज करना है ना, उसके साथ आपको थोड़ा सा लिंक है ये, ठीक है? कैसे कि आपको करंट सिनेरियो देखना पड़ेगा मार्केट का, एंड देन यू हैव टू सी कि उसको आइडियोलॉजी से आप अपनी वही आइडिया से कैसे चीज़ों को प्लान करके एक द वे आउट निकालोगे, ठीक है, जिससे आप हायर एंड हायर प्रॉफिट इन फ्यूचर अर्न करोगे. तो एक्शन ओरिएंटेड. डायनामिक एजेंट, ये बहुत सारे हैं वैसे तो, ठीक है, आप रीड कर लीजिएगा. डायनामिक एजेंट मैं रीड कर देती हूँ. एंटरप्रेन्योर क्रिएट न्यू नीड्स and new means to satisfy them. He has the ability to visualize new ventures and new plans. High achiever, they have the strong urge to achieve. The most important characteristics is achievement, motivation, trust in self. Yes, own decisions, जो हमने लिए decisions हैं उन पे believe करना ज़रूरी है, उसको अपनी creations पे believe करना ज़रूरी है. He has trust in his perseverance and creations. He does not believe in luck. किस्मत पे भरोसे नहीं रहना कि हाँ हो जाएगा whenever the time will come. No, you have to do hard work, more hard work to achieve success in your life. Appointment of, okay, this much, yeah, this was only let me see. Yes, so these were the functions. आप और भी ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, फिर वन लाइनर्स भी ऐड कर सकते हो. दे आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दे कंसीव न्यू आइडियाज़ एंड अचीव इनोवेटिव सोल्यूशंस, दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एज फॉर कन्विंसिंग द पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स. मैन, दूसरे स्टेक होल्डर्स को आप अपने प्रोडक्ट को कैसे दिखाओगे? देखो, कोई भी आपके प्रोडक्ट को पहले उसको ड्रीम नहीं आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ब्ला ब्ला, तो आपको उसको सबसे पहले कन्विंस करना पड़ेगा अपनी बातों से. तो आपकी जो बातें हैं उसको थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, तभी वो उस प्रोडक्ट या जो भी चीज़ आपने लॉन्च करी उसको ख़रीदने के लिए रेडी हो. तो the entrepreneur should have good communication skills. So for convincing the potential stakeholders, and उनको करंट सिनेरियो के साथ अपडेट रहना ज़रूरी है. ये नहीं कि वो कोई लॉन्च कर रहे हैं कोई चीज़ और वो पहले से ही लॉन्च हो चुकी है, उनको पता ही नहीं. उनको करंट सिनेरियो पता होना चाहिए कि आज वर्किंग डिमांड्स क्या हैं, लोगों की क्या नीड्स हैं, उसके बेसिस पे उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए. दे आर डेडिकेटेड एंड पैशनेट, दे आर करेजियस. वेरी वेरी मोर एंड मोर यू विल गेट इफ़ यू विल रीड अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है. They are clear with their targets, they work hard from the beginning, work extra hours so that they can achieve best. So that's it, ठीक है. तो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. बहुत सारे, अब तो ये तो क्वालिटीज़ थी कि उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं, बट उनको काफ़ी सारे फंक्शंस भी अंडरटेक करने होते हैं, बहुत सारा काम करना होता है. तो जो उनका फंक्शन है वो क्या क्या है? एंटरप्रेन्योर परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन द सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल. ओके, जैसे कि इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, दिस वी हैव डिस्कस ऑल्सो इन द क्वालिटीज़. बट ये फंक्शंस के तौर पे हम डिस्कस करेंगे कि इनोवेशन किस तरीके की इनोवेशन, क्रिएटिव किस तरीके का क्रिएटिव, कि वो चीज़ों को लॉन्च करने में क्रिएटिव रहें, वो चीज़ों को अंडरटेक करने में, न्यू मार्केट्स को ओपन करने के, रॉ मटेरियल का नया सोर्स ओपन करने में, नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करने में. लाइक इनोवेशन इज़ अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, ठीक है. फोरसी मैं आपको बताती हूँ. फोरसी इज़ ऑल्सो वन फंक्शन, मेरे को पता है जो foresee. What is this? That entrepreneur is a practical dreamer. Understand? He has to visualize the needs of the market in the society. उसको जो सोसाइटी में नीड्स है ना उसको विजुअलाइज करना ज़रूरी है. वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो किसी को कल को पसंद ना आए तो उसके तो पैसे भी वेस्ट और उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ. सो उसको लोगों की नीड्स को विजुअलाइज करना ज़रूरी है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट. सो अब हम देखते हैं रिस्क टेकिंग हैज़ टू टेक रिस्क बाय चूजिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. कभी कभी एंटरप्रेन्योर गलत डिसीजन भी ले लेते हैं. दैट्स ओके बिकॉज यू आर इन बिजनेस. तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा ही, ठीक है. बट हाँ, आपको फिर भी अपनी डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा ध्यान देके एवेल्यूएट करना चाहिए अपने आइडियाज़ को. नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. हैज़ ऑर्गेनाइज एंड मैनेज वेरियस इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर सुपरविजन एंड डायरेक्शन, ठीक है. एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, अलग अलग तरह के इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स को कैसे करना चाहिए. ऑर्गेनाइज कैसे करेगा भाई? वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके. अगर उसने ग्रुप ऑफ पीपल को
वो करा है, उसको मतलब अपने अंडरटेक करा है, अगर उसने हायर करा ग्रुप ऑफ पीपल को, तो फिर उनमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। ऐसा तो ना उसने 15 जनों को हायर करा और उसमें 10 जाने आपस में लड़ रहे हैं ये बनेगा ये नहीं बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है, कंट्रोल भी ज़रूरी है, सुपरविजन भी ज़रूरी है और डायरेक्शन भी ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट इज साइज एंड स्केल ऑफ द बिजनेस यूनिट। एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड अबाउट द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट एज ही वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश वन प्रोडक्शन यूनिट और मोर डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट। पहले उसको सोचना पड़ेगा कि उसको स्मॉल स्केल की बेसिस पे खोलनी है अपनी बिजनेस यूनिट। स्मॉल स्केल फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री खोलनी है तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलूँ या बिग स्केल इंडस्ट्री खोलूँ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, है ना। क्योंकि अगर वो लार्ज स्केल खोलेगा तो उस अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी, तो प्रोडक्ट भी उसको अच्छा क्वालिफाइड मतलब अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कि आज की वर्किंग डिमांड्स को विजुलाइज कर सके। वो इस तरीके से उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि लोगों को वो अट्रैक्ट कर ले वो जो प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसको उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। तो प्रॉफिट की तो बात बाद में है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है क्योंकि इसमें आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते जा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू बियर अ रिस्क बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर। डर के आगे जीत है। So and the entrepreneur has to decide about the size of the business unit. Okay, that's it. Okay, the appointment of managerial and other workforce. वही जो एंटरप्रेन्योर है वही तो अपॉइंट करता है, वही तो हायर करता है मैनेजमेंट स्टाफ को, एज वेल अदर वर्कफोर्स जो भी उसने प्रोडक्ट बनाना उसके अकॉर्डिंग वर्किंग डिमांड्स को सेटअप करते हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास लैंड बहुत कम है लेकिन आप चीज़ें बहुत सारी बनाना चाहते हो, XYZ चीज़ें बनाना चाहते हो, पर आपके पास लैंड बहुत कम है, ठीक है। तो आपको लैंड भी ऐसा ही भी लेना, लेबर भी। अगर आप प्रोडक्ट बनवा रहे हो एक भारी भरकम सा अच्छा सा प्रोडक्ट बनवा रहे हो और आप लेबर उसके लिए सिर्फ 15 जाने लगा रहे हो, तो उनसे आप ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो इस तरीके से तो फिर आपका लॉस ही होगा क्योंकि लेबर भी इतने मन से काम नहीं करेगी। सो यू हैव टू टेक द अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स। कैपिटल का भी, अगर आप प्रोडक्ट जिस अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो उसी तरीके से कैपिटल आपको मैनेज करनी पड़ेगी। कैपिटल मीन्स मनी, द इन्वेस्टमेंट सोर्स। ओके, अपने एंड आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए दीज फैक्टर्स ऑल्सो दिस अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटरप्रेन्योर। कंट्रोल एंड डायरेक्शन, डिपार्टमेंट्स पे कंट्रोल होना चाहिए, उनको टाइमली बेसिस पे डायरेक्ट करते रहना है अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। फाइंडिंग सूटेबल मार्केट, उसको एक अच्छी मार्केट भी ढूंढनी चाहिए पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टीजमेंट्स, है ना। तो सेलिंग एजेंट्स को अपॉइंट करना चाहिए जो कि उसके प्रोडक्ट्स को लेकर जाकर एडवर्टाइज़ करेंगे वेरियस मार्केट्स में और उनको सेल करके आएंगे, ठीक है। इंटरमीडिएरीज चाहिए उसको, सेलिंग इंटरमीडिएरीज जो उसके सेल्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है। सो उसको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सो या ठीक है, न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड अबाउट बिलो। सो एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस विद द गवर्नमेंट, ट्रेड बैरियर्स, हमने सोशल साइंस में पढ़ा है ना ट्रेड बैरियर्स के बारे में। तो गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको अगर लार्ज स्केल बेस पे इंडस्ट्री खोल रहे हो तो आपके बाहर बाहर के इंटरनेशनल स्केल पे भी आप बिज़नेस करना चाहो तो गवर्नमेंट के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप होना चाहिए, आपकी थोड़ी पहुंच होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर मस्ट एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस विद द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनरीज। मतलब उसके जो स्मॉल स्केल मतलब स्मॉल लेवल पे जो लीडर्स होते हैं, ठीक है। एंड हिज फंक्शन इज टू obtain लाइसेंस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सेलिंग द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट, प्रोविजन फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। द मेजर इज़ द प्रोविजन फॉर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, क्योंकि कभी कभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर नहीं मिलता है चीज़ों को एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। कभी कभी हमें इम्पोर्ट नहीं करवा पाते, कभी कभी। सो एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स, येस, इससे आपको फ़ायदे भी होंगे क्योंकि आप कॉम्पिटिटर्स के बारे उनके साथ रहोगे तो उनकी वे ऑफ माइंड जो जिस तरीके से वो प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ों को बनाने में, अपने माइंड का एवेल्यूएट कर रहे हैं आइडियाज़ को, उनसे आप थोड़ी सी ले सकते हो। तो उनको अच्छे बिल्डर्स कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने चाहिए ताकि वो मार्केट को और अच्छे से एनालाइज कर सकें, वो ऐसी पोजीशन पे हों कि वो अपॉर्चुनिटीज़ गिवन सिचुएशन में से ले सकें। आप जब किसी के साथ बैठते हो तो आपको उसके साथ साथ उसकी बातों से एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऐसे ही जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो आपको there are many things, so we'll not talk about that. He must be in the position to make opportunities out of the given situation, whatever situation is likely to be. He had to make a decision and he had to win that particular goal. So इसीलिए उसको अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए, रिसर्च प्लान,
ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, एग्जीक्यूशन, पब्लिक रिलेशंस, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आपको लिख के बता देती हूँ, भूल मत जाना आप। ये वैसे मैंने आपको जितने बताए उतने बहुत हैं, लेकिन इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा, ये यू लिखा है बच्चा मैंने, ठीक है। स्टैट्यूट जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ऑब्लिगेशंस, what does it means? It is also another function of a entrepreneur. What is it? That he has to understand and properly liaison with the government for the legal complements in concern with the stakeholders of the enterprise. समझ आया कि उसको ना प्रॉपरली लाइजन चाहिए गवर्नमेंट के साथ, कॉन्टैक्ट, प्रॉपर लीगल कंप्लेंट्स चाहिए इन कंसर्न, लीगली भी उसके पास होना चाहिए। रिपीट्स, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, रिलेशंस एस्टैब्लिश करने से नहीं उसका मिल जाएगा उसको, बट ऑल्सो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इज ऑल्सो नेसेसरी पॉइंट। मार्केटिंग की, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट भी लोगों को कैसे अवेयर करेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, आपकी सर्विसेज लॉन्च हो चुके हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ठीक है। एंड लॉन्चिंग, फाइनली आफ्टर वर्किंग सो मच ऑन द प्रोडक्ट और द सर्विस वॉट एवर यू हैव लॉन्च, द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक इनिशिएटिव्स टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट। भाई इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा ना, तुमने बनाया प्रोडक्ट, तुम उसके बारे में थोड़ी एडवर्टाइजमेंट लाओ, प्रमोट करो उसको, अलग अलग जगह पे उसके फ्लेक्सेस छपवा सकते हो। देयर आर मैनी थिंग्स टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। नाउ द रोल्स ऑफ द इम्पॉर्टेंस, रोल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ओके, इसके बाद हम मिथ्स भी पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के, मिथ्स, एडवांटेजेस क्या हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, मिथ्स या मिथ्स हम लास्ट में पढ़ेंगे, ओके में नो प्रॉब्लम। बट ऑल्सो रोल एंड सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur is a builder of economic growth. He promotes the prosperity of the country by his initiative and the skill for the initiative and dynamic leadership. He creates wealth, he creates health, opens up the employment opportunities and fosters the other segments of the economic system. So there is a role of the entrepreneurs, the different roles played by the entrepreneurs in the following headings. Helpful and capital information. First point is organizer of society, productive resources. An entrepreneur is an organizer of the society productive resources. He is a person who assembles the unused natural, physical, human resources of the society and combines them properly, establish effective coordination between them and make the economic activities dynamic. So basically इस point में था कि उसको जो फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के, जितने भी फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, ब्ला 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 रिसोर्सेज, ही हैज़ टू कंबाइन देम ब्यूटिफुली एंड देन एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। तभी तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डायनेमिक लगेंगी, उसको टाइटल मिलेगा डायनेमिक का। हेल्पफुल इन कैपिटल इंफॉर्मेशन, द एंटरप्रेन्योर इन हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, एज वी नो दैट इंक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज क्वाइट एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इफ़ यू विल अर्न समथिंग मोर देन द कंट्री विल अर्न समथिंग मोर, बिकॉज आप तो कंट्री के ही बंदे हो ना, तुम्हें भी तो टैक्स पे करना है। जितनी जितने से तुम्हारी इनकम बढ़ती रहेगी उतनी तो तुम्हारा टैक्स भी बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। तो मतलब गवर्नमेंट का ही फ़ायदा हो रहा है साथ साथ में। दोज नेशंस विच आर नॉट एबल टू इंक्रीज देयर रेट ऑफ कैपिटल इंफॉर्मेशन और डिड नॉर्मली रिमेन बैकवर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। जिन लोगों ने पहले से ही डिसीजन मेकिंग अपनी क्वालिटी में अच्छा जो है ना पाया नहीं, तो बाद में वो बैकवर्ड रह जाते हैं क्योंकि वो कुछ कमा नहीं पाते, तो रेट ऑफ कैपिटल इंफॉर्मेशन उनका बैकवर्ड रह जाता है क्योंकि वो डिक्रीज रहता है। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, गिनी चुनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि कारगिल फूड्स है, ठीक है, जैसे कि उसने हमारे यहाँ के जो ऑयल, फेमस ऑयल की, वो जो एडिबल ऑयल्स की फैक्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है उसने उसको बाय कर लिया। तो फॉर एग्जांपल कारगिल, हाँ ना, तो लोग कारगिल से लेते हैं, हमारे तो यहाँ पे नहीं है, कारगिल इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, तो बाहर के देशों में है इंडस्ट्री, जो कि बेसिकली अब उसका नाम आ गया है मार्केट में, तो लोग उससे ही प्रोडक्ट बाय करेंगे क्योंकि लोगों को पता चल चुका है उसका नाम के बारे में। उसने भी कई तरह की करी होंगी, मार्केटिंग करी होगी उसने भी अपने प्रोडक्ट की, और साथ ही साथ उसने नाम गेन कर लिया, तो लोग उससे ज़्यादा बाय करते हैं। दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल है, मेरी एक एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट सीरियसली, इट इज़ ओनली अजम्पशन। ओके, तो इसी तरीके से आपको शुरुआत से ही रेट ऑफ कैपिटल में इंक्रीज़ रखना है, जो कि इकोनॉमिक, आपको इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, अगर आप अच्छा चीज़ बनाना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। सो बी गुड इन रेट ऑफ हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीजिंग अपलिफ्ट।
देखो, अगर आप एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो अपने एरिया में ताकि आपका आपका तो एक्सपैंड होगा ही बिजनेस, बट ऑल्सो इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वर्कर्स। हायर करोगे, वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ही मिलेगा ना बच्चा, तो वो भी अपना लिवलीहुड अर्न कर पाएंगे। दैट इज़ so yeah. Development of new production techniques. An entrepreneur does not feel contented only with the existing techniques. He carries out various experiments for saving time, labor, capital of the production, and also improve the variety and the quality of the product and the service. नई प्रोडक्शन टेक्निक्स, बच्चा यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसको सिर्फ एग्जिस्टिंग टेक्निक्स फॉर एग्जांपल फॉर से आपने कोई XYZ ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करा है मार्केट में किसी ने, वो है एक फोम फेस वॉश है, तो बहुत सारी कंपनीज को लॉन्च फिर अपनी इंडस्ट्रीज़ में बनाना शुरू कर दिया, उसको लॉन्च करना शुरू कर दिया, वो बिक बहुत रहा है, उसकी डिमांड बहुत है मार्केट में। पर आपको वो फॉर्म फेस वॉश पे नहीं रिलाई करना है, आपको नई नई आइडियाज़ को अंडरटेक करके और फेस वॉश लाने हैं जो कि बाहर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अट्रैक्ट करे और वो उसको बाय करें और आप प्रॉफिट अर्न करो। ठीक है। विजनरी लीडर, ही हैड गुड विजन टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, द क्वालिटीज़ एंड समहाउ आपने भी देखा होगा कि जो क्वालिटीज़ हैं और जो रोल्स हैं वो थोड़ा एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है इनका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, नेशनल गोल्स को अचीव करने में, कॉपरेट करने में गवर्नमेंट के साथ, डेवलपमेंट प्लान्स, हायर प्रोडक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर हैव द एबिलिटी टू, one second, entrepreneur play an important role in the raising productivity. Initiator, entrepreneur is the one who initiates the process of creating enterprise with counting up with the ideas for the business and planning how to turn idea into the reality. बिल्कुल, अगर आपने आइडिया सोचा है कि मैं ये चीज़ लॉन्च करूँगा, वो चीज़ों के लिए पैसे बहुत लगने हैं, तो आपके लिए तो फॉर द टाइम तो वो इम्पॉसिबल हो गया ना, क्योंकि आपकी कैपिटल ज़्यादा लग रही है, आपको पता नहीं कि आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसी चीज़ सोचनी है जो कि पॉसिबल भी हो सके। ओके, यू हैव टू टर्न योर आइडिया इनटू रियलिटी। सो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो आपको ध्यान से विजुअलाइज करना है कि आपको क्या बनाना है, क्या आइडिया विजुअलाइज आपको ध्यान से करना पड़ेगा। बैकबोन ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। Capitalist economic is one of the in which there is a freedom to save and invest to complete and operate any business. And entrepreneur plays a vital and prominent role in the enterprise because it controls market by assuming the role of competitor and leader. आई होप ये पढ़ कर ही आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये तो आपको देखने को मिलता है। इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम, बैलेंसिंग व्हील बनना चाहिए उसको मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी का बच्चा, इकोनॉमी का, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इकोनॉमिक टॉपिक पे बात करें। इकोनॉमिक का जो है ना, ये एक बैलेंसिंग व्हील बनना पड़ेगा उसको मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी का, ताकि वो एक यूनिक सा प्रोडक्ट, यूनिक क्या होता है कि आपकी 100 लोगों से अलग चीज़ हो आपके पास, यूनिक, दैट इज सेड टू बी यूनिक। चेंज देयर टेक्निकल फ्रंटियर्स एंड रीशेप देयर पब्लिक डिजायर्स। टुडे एंटरप्रेन्योर्स एक्ट एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम एज ए क्रिएट वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। वो वेल्थ तो क्रिएट करती है ना अपने लिए, पैसा तो क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स के, दूसरे जो वर्कर्स हैं जो उसकी कंपनी में काम करते हैं। तो इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम, आई होप आपको याद भी रह जाए। एडवांटेजेस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो या एडवांटेजेस भी थोड़ी देखने को मिलती हैं। तो मिथ्स थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा पेपर पूछी जाती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपनी जगह पे वो भी इंपॉर्टेंट है और अपनी जगह पे वो भी इंपॉर्टेंट। डोंट मिस एनीथिंग। एडवांटेजेस क्या है, अब भाई अगर आप अपने खुद का बिजनेस खोल रहे हो तो आप क्या बन जाओगे, अपने बिजनेस के बॉस बन जाओगे, ओनर बन जाओगे अपनी कंपनी के। आपने कोई XYZ इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया, आपने कोई ये लिखिए मेरा बच्चा, 1 सेकेंड, आपने कोई XYZ इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करा है, अब आप उसके क्या बन गए, बॉस। इंडिपेंडेंस मिल गई ना आपको, डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली लेने के लिए। अगर आप किसी के अंडर काम करते हो तो आपको डिसीजंस को लेने के लिए किसी से पूछना पड़ता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर सो एंड सो थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंस मिल गई आपको। नेक्स्ट इज़ एक्साइटिंग। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप तो भाई बहुत
अच्छे लेवल पे चले जाओगे, आपके लिए तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। तब आपके अगर कुछ देखो, कई हमारे आइडियाज़ तो हमारे मन में 100 आते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट एक करते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग आइडिया के लिए अलग अलग चीज़ों के प्रोसेस को अंडरटेक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है एक्स और दूसरा प्रोडक्ट वाई, तो एक्स को लॉन्च करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे लगेंगे, पर बस अभी इतने पैसे हैं नहीं, तो मुझे वाई लॉन्च करना पड़ेगा ना। अगर मैं वाई लॉन्च करके पैसे ज़्यादा कमा लूँ तो मैं एक्स भी लॉन्च कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से एवरी डे विल फिल विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास इंडिपेंडेंस होगी, साथ ही साथ वो आपके लिए एक्साइटिंग होगा कि आप अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो इससे। वेल्थ तो क्रिएट हो गई भाई, ठीक है। एवरी डे विल फिल इन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू चैलेंज योर डिटर्मिनेशन, योर स्किल्स एंड योर एबिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट इज वेल्थ क्रिएशन, द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यही तो है, आप क्यों इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर रहे हो? प्रॉफिट गेन करने के लिए, द मेन मोटिव। सो द वेल्थ क्रिएशन, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज वेल्थ क्रिएशन, इम्प्रूव्ड लिवलीहुड बाय मीन्स ऑफ टेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। Entrepreneur ventures, venture means that's better, okay. Generates new wealth, new improved products, services, technology. Ventures are the stakeholder, ventures are somehow not like SaaS Sapata, but the venture really means like daring way. You have to risk taking journey, that is a venture, okay. Entrepreneur venture generates new wealth, new improved products, new services, new technology from the entrepreneurs. Flexibility, you can schedule your work hours and हाँ, अगर आप किसी के अंडर काम करो तो आपको टाइम देगा ना, एक बाउंडिंग टाइम देगा कि आपकी 9 to 5 जॉब है, आपकी बाउंडेड जॉब है, आपको उतने से उतने टाइम पीरियड में काम करना होगा। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको बस करना ही पड़ेगा उस टाइम में काम। आप जल्दी नहीं कर सकते, आप जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते, जल्दी उठ नहीं सकते, जल्दी जा नहीं सकते, जल्दी आ नहीं सकते, ठीक है। तो 9 to 5 इज़ अ परमानेंट वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर आपको कहीं क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना है तो आप अपने वर्क आवर्स को शेड्यूल उस अकॉर्डिंग कर सकते हो कि कल हाँ मुझे पता है मैंने कहीं जाना है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग 5 to 6 आवर्स का काम करना है, तो मैं पहले कर लूँगा उसको, या फिर आज रात को मैं करके थोड़ा सा सो जाऊँगा। लाइक सो एंड सो थिंग्स यू शेड्यूल अकॉर्डिंग योर वर्क आवर्स, है ना। तो आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर जाओगे और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाएगी आपको काम में, ठीक है। तो आपको एक परमानेंट वर्किंग आवर्स नहीं मिलते। स्टेटस कंसिडरेबल फेम इज फेमस, पर्सनालिटी बन जाती है ना आपकी, एक प्रेस्टीज बन जाता है सोसाइटी के अंदर कि हाँ भाई ये तो बंदा बहुत सक्सेसफुल है। स्टेटस सिंबल बन जाता है। एम्बिशन फुलफिलमेंट, यस, अगर आप पैसे गेन करोगे तो आपके कोई भी जो एम्बिशन है वो फुलफिल भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन फुलफिल हिज एम्बिशंस, हिज विशेस बेसिकली इनटू ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। डिसएडवांटेजेस, कोई भी काम करोगे उसके फ़ायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। तो नुकसान डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या हैं। देखो, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, some of the disadvantages, then we'll discuss upon the myths. This chapter is really very boring, but we have to focus because it's our boards, okay. Huge amount of time, you have to dedicate a huge amount of time to your own business. तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप में भाई चीज़ की रोलिंग शेपिंग से उसकी मेकिंग तक, चीज़ों की रोलिंग शेप, फॉर एग्जाम्पल तुम स्टील बना रहे हो, स्टील की रोलिंग शेपिंग से उसकी मेकिंग ऑफ स्टील तक तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स अ टाइम, क्योंकि मशीन से तुम अंडरटेक करोगी बट मशीन भी तो टाइम लेती है ना काम करने में, उनका भी तो टाइम बाउंडेड होता है। तो व्हेन यू आर अचीविंग योर गोल इट टेक्स टाइम। किसी भी आप लाइन में जाओगे उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकन टू बी सक्सेसफुल। अगर आपने चीज़ें लॉन्च कर भी दी तो सक्सेसफुल होने में बहुत टाइम लग जाता है, नाम बनाने में, नाम कमाने में बहुत टाइम लगता है। रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बिजनेस फेल भी कर सकता है, पर्सनल सेविंग्स गायब भी हो सकती हैं। हार्डवर्क, उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, अरे कोई भी काम करोगे उसमें हार्डवर्क तो लगेगा ही। सो बी हार्ड वर्किंग, ठीक है। स्मार्ट वर्क नहीं होता है यहाँ पे कोई भी, ठीक है, कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता। जस्ट डिलीट वैनिश द टर्म स्मार्ट वर्क फ्रॉम योर माइंड। देयर इज़ नो स्मार्ट वर्क, द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज हार्ड वर्क। सो यू शुड बी सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू नीड टू वर्क हार्ड। So work hard. To make your business successful, you need to work hard. Uncertain income. There is no regular fixed income available to the entrepreneur. Yes. अगर आपने आज कोई प्रोडक्ट बनाया है तो क्या पता वो सस्ता भी हो जाए, मतलब कि 20 रुपये का आप बेच सकते हो उसको। ये एक सपोजिशन है, जस्ट सपोज द सिचुएशन, हाइपोथेटिकल।
ओके, तो अगर आप वो चीज़ 20 रुपीज़ की बेच रहे हो तो उससे आप अनसर्टेन इनकम, कल को अगर आप कोई प्रोडक्ट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देके 10,000 का बना रहे हो तो आपकी इनकम तो अनसर्टन होगी ना, कहाँ 20 और कहाँ 10,000। तो there is no regular fixed income available, so there is uncertain kind of income received by the entrepreneur. Incompetent staff, qualified staff, experienced staff नहीं मिल सकता। कभी कभी नहीं मिलता है हमें एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ एक ही टाइम पे नहीं मिलते, क्योंकि नए नए लोग भी होते हैं, काफ़ी सारी नया स्टाफ आता है, नया काम करते हैं तो अलग अलग गलतियाँ करते हैं, पर जो एक्सपीरियंस है वो तो नहीं करता, लेकिन एक्सपीरियंस मिलना बहुत मुश्किल है। इनकम्पिटेंट स्टाफ। Now we are done with the chapter, people. Congratulations. Oh my god. So now the chapter is completed. Now we will not leave the session, but we'll also practice some questions based upon entrepreneurship chapter. Let's get ahead. If you need to practice of multiples, it would not be there, but कितने हैं multiples हमारे पास? Only 15 multiples. Now we'll just complete it fastly, क्योंकि इससे भी हमें कोई ना कोई नॉलेज तो मिल ही सकती है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन इसमें से भी रेज हो जाता है कभी भी। इनोवेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड्स, क्योंकि आपको केस स्टडी में 1 मार्कर्स भी आने वाले हैं, तो 1 मार्कर्स के लिए मल्टीपल्स भी आ सकते हैं, मल्टीपल्स को भी 1 मार्कर्स के फॉर्म में डाला जा सकता है। इनोवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इंक्लूड्स डिवीजन ऑफ वर्क, ओपनिंग न्यू मार्केट्स, इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। बताओ डी, बोथ बी एंड सी। इनोवेशन में आपको क्या करना है? डिवीजन ऑफ वर्क इनोवेशन में नहीं है, वो तो मोटिवेटिंग योर स्टाफ है, वो तो आपकी कैपेसिटी स्टाफ की जो भी आपको, वो तो अलग चीज़ चलेगी। इनोवेशन, नए आइडियाज़ को बुनने के लिए आपको नई मार्केट्स ओपन करनी पड़ेंगी, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, हमने पढ़ा था। तो बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजेस फॉर, बच्चा हम एक चीज़ छोड़ तो, मिथ्स, हमने मिथ्स छोड़ दिए, मिथ्स कर लेते फटाफट। मिथ्स क्या होते हैं? अब एक बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी है, रियलिटी में पर बहुत डिफिकल्ट है। रियलिटी सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेट ऑफ फेलियर्स बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी जो स्टार्ट है उसके लिए पैसे बहुत लगेंगे। लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस न्यू बिजनेस, स्टार्टअप्स कैन नॉट बी फाइनेंस। जैसे मुद्रा स्कीम्स हैं, कई लोगों के पास ना ख्वाब तो बहुत देखते हैं लोग, लेकिन सपने कईयों के पूरे होते हैं, क्योंकि पैसा नहीं होता है। तो आजकल स्टार्टअप्स भी आ गए हैं। स्टार्टअप्स मीन्स लोन्स प्रोवाइड करने के लिए आपको काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स वहाँ से लोन ले सकते हैं, बैंक में से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो टैलेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन इंडस्ट्री। हाँ, नाम का मतलब तुम्हें कुछ सक्सेस तक अचीव करना, तो हमारे पास टैलेंट भी होना चाहिए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। कि आपके पास टैलेंट कैसे होना चाहिए? आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि आप दूसरे बंदे को पटा लो अपने प्रोडक्ट के लिए। मोस्ट स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल। ज़्यादातर स्टार्टअप्स सक्सेसफुल होते हैं, ये एक मिथ है। ज़्यादातर स्टार्टअप्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो हाई प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने बिजनेस को। ओके, अब हम करते हैं चैप्टर प्रैक्टिस स्टार्ट। हमने सेकंड क्वेश्चन तक तो कर लिया था, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म टू अचीव हिज गोल्स? पीपल हु वर्क फॉर हर एवरी डे, शी स्पेंड्स 1 hour with them to learn about what they have done that day. This means she divides income, manages the business, innovates a product, manages the business। भाई वो दूसरे के कामों को सुनती है कि क्या काम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स के बारे में सुनती है, उनको मोटिवेट करती है फ्यूचर वर्क के लिए। Successful statement related to the true statement related to the entrepreneurship. A lot of money is needed to start the entrepreneur venture. Next is main aim of entrepreneurship. मेन एम क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का? मेन एम ये है कि उनका प्रॉफिट उनको अर्न करना है, उनको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अच्छी, तो बोथ भी है ए एंड बी। मैरी बायज बल्ब फ्रॉम बिजनेस फॉर हर बिजनेस फ्रॉम नोएडा। अपने बिजनेस में नोएडा से बल्ब खरीदती है, और उसको फरीदाबाद में बल्ब ज़्यादा चीपर मिलते, ज़्यादा सस्ते मिलते, तो उसने वहाँ से बल्ब स्टार्ट कर दिया बाय किया, ठीक है।